We have studied about the mode of nutrition. Yesterday हमने mode of nutrition के बारे में पढ़ा था. Mode of nutrition जिसमें हमने पढ़ा था कि nutrition टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है autotrophic nutrition, autotrophic, और दूसरा होता है heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition. Autotrophic और heterotrophic nutrition में आपने देखा कि all those organism who make their food by own self are known as the autotrophic, and all those organisms who are depend for the food on another, these are known as the heterotrophic. Like as plants, we had studied about the plants. Plants are producers of food. Plants are known as the producers of food. Producers of food. And we heterotrophic means animals, birds, human beings. We all are the acceptor of food. Acceptor of food. Acceptor of food. Autotrophic nutrition means plants. Plants make their food by the process of autotrophic nutrition, and all those elements who depends upon another for taking the food, these are known as the heterotrophic. Heterotrophic, and the such a type of nutrition is known as the heterotrophic nutrition. Now I am going to detail you about the plants feeding process. How the plants make their autotrophic nutrition. How the plants complete their autotrophic nutrition. Means plants is the source. Plants is the such a source who complete the food of. Total atmosphere. Plant is the such a source who complete the food of total atmosphere. If there is a balance in our atmosphere of the oxygen, that is due to the plants. And if plants absorb the carbon dioxide from the atmosphere, it means whatever we are getting the proper air. If we are getting the proper air in our atmosphere, that is due to the plants. So now I am going to detail you how the plant make their own food. How the plant make their own food. How the plant make their own food. एक नॉर्मल सी प्रोसेस है कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाता है. मेनली अर्लियर स्टेम. दो चीजें आप समझिए. अर्लियर स्टेम एंड लीव्स. क्या अर्लियर स्टेम और लीव्स. ये दो चीजें ऐसी होती हैं. देखिए आपने प्लांट्स देखा होगा, तो प्लांट्स जब बड़ा हो जाता है तो उसके स्टेम ब्लैक हो जाते हैं, और जब तक प्लांट्स बड़ा नहीं होता उसका स्टेम कैसा होता है? ग्रीन होता है. तो जब तक प्लांट का स्टेम ग्रीन, अर्लियर स्टेम मींस ग्रीन स्टेम. जब तक प्लांट का पार्ट ग्रीन है तब तक प्लांट का जो स्टेम पार्ट है वो इट्स हेल्प ग्रीन स्टेम, इट्स हेल्प to make the food. It's help to make the right. It's help to make the food. अब ऐसे लीव्स जो होती हैं वो कंप्लीटली ग्रीन होती हैं, और वो भी फूड में लीव्स फूड मेकिंग पार्ट. Leaf is what? Food making part. Why they make the food? Now the question is that why the earlier stem and leaves make the food? Because they contains the chlorophyll. Chlorophyll. अब now the question is that what is chlorophyll? एक क्वेश्चन बनता है ना. जैसे मैंने बता दिया कि खाना जो है वो अर्लियर स्टेम और लीव्स बनाते हैं. क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है. अब क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल इज ए ग्रीन पिगमेंट. व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल इज ए ग्रीन पिगमेंट. अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि अगर ये क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है तो ये करता क्या है? क्लोरोफिल करता क्या है? क्लोरोफिल हेल्प्स टू एब्जॉर्ब द सनलाइट एनर्जी. क्लोरोफिल क्या रोल है? हेल्प टू एब्जॉर्ब द सनलाइट एनर्जी. सनलाइट एनर्जी. समझ में आई बात?
अगर किसी प्लांट में क्लोरोफिल होगा तो वो प्लांट का वो पार्ट सनलाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अगर क्लोरोफिल, इफ देयर इज नो क्लोरोफिल, देन प्लांट्स पार्ट विल नॉट एब्जॉर्ब द सनलाइट ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ दिस एनर्जी? What is the role of this energy? I'm going to describe you what is the role of this energy which is absorbed from the sunlight. I'm going to detail you what is the role of this energy which is absorbed from the sunlight. The role of such energy to complete the process of photosynthesis. The role of energy is to complete the process of photosynthesis. The process of photosynthesis. एक चीज मैं आपको डिस्क्राइब करके बता रहा हूं, सिंथेसिस। इज इट क्लियर? अब क्या किया, रोल ऑफ एनर्जी आ गया आपका। नाउ अब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे कंप्लीट होती है? नाउ वी हैव टू स्टडी कि हाउ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज गोइंग टू कंप्लीट। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज गोइंग टू कंप्लीट बाय द, it means process of photosynthesis is making of food. Process of photosynthesis is making of food. Photosynthesis is making of food. Making of, right ना? Photosynthesis is what? It's making of food. अब food में food का मतलब क्या होता है? What is meaning of food? What is meaning of food? Food means food is the source who give us energy. Food is the source who give us energy. So how the plants will give, what the plant will give us energy? How the plants will give us energy? So by making the food, plants take the energy. By making the food, plants take the energy. तो अब उसके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? आपको एनर्जी तब मिलेगी जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज आएगा. You will get the energy when you will get the glucose. तो how the plant will get the glucose? तो प्लांट्स में क्या होता है कि लीव्स जो आपका पार्ट है, प्लांट्स का जो लीव्स पार्ट होता है, इसके लीव्स हो गया. अब आप सपोज करिए ये इसकी एक आपको आपके सामने एक लीव्स मैंने बना दिया, राइट? इट्स लीव्स. इज इट क्लियर? सॉरी, लीव बन गई आपकी. इट्स ए लीव ना. लीव में यू विल ऑब्जर्व दैट देयर आर द टू पार्ट्स ऑफ लीव. दिस पार्ट इज अपर एंड लोअर, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट. तो लोअर पार्ट कंटेन, लोअर पार्ट ऑफ लीफ, लोअर पार्ट ऑफ लीव्स, कंटेन, लोअर पार्ट ऑफ लीफ कंटेन स्टोमेटा. स्टोमेटा व्हाट इज स्टोमेटा? स्टोमेटा इज ए स्पोर. स्पोर एक छिद्र होता है. क्या होता है? स्पोर. स्टोमेटा इज स्पोर व्हिच इज ले डाउन एट द लोअर लेयर ऑफ द लीफ. लीफ के लोअर पार्ट में स्टोमेटा, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है. such a type of structure is what? Stomata. Stomata ये प्लांट्स की लीफ में पाया जाता है. क्या कहां पाया जाता है? लीफ में पाया जाता है स्टोमेटा. अब स्टोमेटा क्या करता है? व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमेटा? स्टोमेटा टेक इन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को इन करता है. ऑक्सीजन को क्या करता है? अंदर लेता है. एंड लीव द, क्या छोड़ता है? नहीं सॉरी, टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड. सॉरी, टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड. टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड. और लीव क्या क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन. क्या छोड़ता है? टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड लीव द ऑक्सीजन. कैसे? अब ये एक प्रोसेस है. जैसे आपने देखा कि फॉर कंप्लीटिंग द फोटोसिंथेसिस एनर्जी एक चीज हो गई. क्या हो गई? एनर्जी. सेकंड क्या हो गया? फर्स्ट इज एनर्जी. सेकंड क्या हो गया? सेकंड हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, राइट ना. अब एक और कंपोनेंट इसमें मिलता है जिसको हम बोलते हैं वाटर. क्या बोलते हैं? वाटर. अब वाटर कहां से आता है? जो प्लांट्स होते हैं उनमें एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं जाइलम. क्या बोलते हैं? जाइलम. ये टिश्यू है. इट्स ए प्लांट टिश्यू व्हिच एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द अर्थ. क्या करता है? पानी को ऐसे ऐसे, पानी ये रूट हो गया और रूट से पानी ऐसे 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 एब्जॉर्ब होता है. कब
एब्जॉर्ब होता है? जैसे जब लीव्स का जो पार्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, एक स्पेस बनता है इसके अंदर से और वहां से पानी ऊपर चढ़ के जाता है, तो कितनी चीजें हो गई? एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इज इट क्लियर? तो आप एनर्जी कहां से पाते हो? सनलाइट से, राइट ना? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, 6 CO2 प्लस 6 H2O in the presence of sunlight, chlorophyll, right ना? Complete C6 H12 O6 plus 6 O2 कंप्लीटेड। ये आपका ग्लूकोज बन गया, ये आपका ऑक्सीजन निकल गया। जैसे C6, अब देखो आप कैसे 6 CO2 कि कार्बन कितना है? 6। कितना कार्बन है? 6। यहां पर कितना कार्बन हो गया? 6। ऑक्सीजन कितना है और हाइड्रोजन कितना है? 12, राइट ना? 12 ऑक्सीजन हो गया आपका। तो आपने देखा हाँ C6H12O6, 12 हाइड्रोजन हो गया आपका। उसके बाद ऑक्सीजन आपका 18 हो गया यहां पर। तो आप देखो 6 ऑक्सीजन ये हो गया, 12 ऑक्सीजन ये हो गया। कंप्लीटेड। इसका मतलब आपका इक्वेशन कंप्लीटेड, आपकी प्रोसेस कंप्लीटेड, फोटोसिंथेसिस। अब जब आपको एनर्जी मिल गई, इट मींस प्रोसेस ऑफ फूड फीडिंग हैज बीन कंप्लीटेड। इज इट क्लियर? नाउ योर लेसन हैज बीन कंप्लीटेड। आप इसको अपने घर पे इत्मीनान से पढ़िए। जो नहीं समझ पाता है वो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करिए। थैंक यू।